Welcome, dear students. We are continuing with the third chapter, Entrepreneurship Development. We are today going to look into the 6 topics that we have seen in detail in our online lectures, but I'm just going to briefly give an idea and give a summary of all these 6 small topics. We have already discussed what is important and what is not, okay, and we have seen that most of them are not going to be asked for more than 2 marks, okay, and that is why I'm taking them in short. The first thing that we are going to see is the process of entrepreneurship development. So there are 2 topics covered here. One is the training part and second is the entrepreneurship development program. So what we saw in the training, we mainly saw that there are 2 kinds of thoughts. Earlier, the traditional thought said that managers or entrepreneurs are born. That is, people who are born with the traits of an entrepreneur. That is, person who has got the caliber of a who is born with the caliber of being a businessman or an entrepreneur can only be successful. Okay, but the modern thought says otherwise. It says that a person can be trained. Okay, with proper training a person can become an entrepreneur. Okay, it is just not by birth. So this is what training says, the traditional thought and now the modern thought. So now what is training? Training is a schedule, it's a systematic process which covers everything, all the aspects which are required for a businessman or an entrepreneur to become successful. ठीक है, तो you will see here it is a systematic, planned, consistent, pervasive, okay, and monitor to measure its effectiveness. So training में हर aspect को देखा जाएगा, एक consistency maintain किया जाएगा. It is well planned, systematic. ठीक है, तो प्लस उसमें मॉनिटरिंग भी होगा जिससे हमको समझ में आएगा कि ट्रेनिंग बराबर हुआ है कि नहीं. ओके, now you also know that what all aspects. Say a person has to be a good innovator, he should be creative, he should know marketing skills, communication skills. ठीक है, तो हर एस्पेक्ट को हर एस्पेक्ट में एंटरप्रेन्योर को ट्रेन किया जाएगा. कैसे रिसोर्सेज को बिना वेस्ट किए करे काम, प्रोसेसेस कैसे चलाए, ठीक है, इनोवेशन कैसे करे. So all these kinds of training is given to the entrepreneur. Okay, the various methods mentioned. Okay, what are the methods mentioned? This lecture method, demonstration method, individual instructions, group instructions, meetings, conferences. ठीक है, तो इससे लाइक अ ग्रुप एक्टिविटी भी होता है, इंडिविजुअल अटेंशन के साथ भी होता है. ओवरऑल दिस इज एन एक्सपोजर फॉर द एंटरप्रेन्योर. ही विल अंडरस्टैंड हाउ द industries work, yes, inside, outside, everything, and he can learn from the experience of his group. ओके, तो ओवरऑल उसको आइडिया आ जाएगा, तैयारी हो जाएगी उसकी कैसे एक सक्सेसफुल इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर बने. ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रेनिंग. नेक्स्ट वी मूव टू एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. यस, यू कैन सी ब्रीफ में ऐसा ये क्वेश्चन आया है, सो यू कैन स्टडी दिस entrepreneurship development program. This first started in Gujarat, okay, in the year 1970, and it was sponsored by the Gujarat Industrial Investment Corporation. Okay, and is based on the McLennan's experiment which was conducted in Kakinada district in Andhra Pradesh. Okay, mainly, in short, EDP या entrepreneurship development program is about finding out the skill. अगर वो जो entrepreneur है, जो entrepreneur बनना चाहता है, उसमें वो गुण है क्या, ठीक है, entrepreneurship वो कर सकता है क्या, सक्सेसफुल entrepreneur बन सकता है क्या. ओके, तो वो recognition, वो एबिलिटी, उसको पहचानने से लेके उसको उसका एंटरप्राइज है, कौन सा बिजनेस उसे स्टार्ट करना चाहिए एंटरप्राइज, और उसे उसको स्टार्ट करने के लिए मदद, ये सब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है. ठीक है, वो हुनर आप में है क्या, कैपेसिटी है क्या, उसके बाद आप कौन से बिजनेस कर सकते हो,
और वो बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना, सबका गाइडेंस आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से मिलता है. Okay, so there are certain steps which have been given: arrangement of infrastructure, selection of the potential entrepreneur. Potential मतलब जिसमें वो कैपेसिटी है, ओके, पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योर बनने का, उसको सिलेक्ट करना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज, बिजनेस को सिलेक्ट करना. फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, ट्रेनिंग पर्सनल कौन करेगा, फिर एक्चुअल ट्रेनिंग. सो 3 पॉइंट्स ट्रेनिंग के ऊपर है, ओके. एंड देन यू हैव टू मॉनिटर एंड फॉलो अप. तो आपको फिर मॉनिटर करके समझ में आएगा कि आपका ट्रेनिंग इफेक्टिव हुआ कि नहीं, वो सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं. ठीक है. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये क्यों करते हैं, ये प्रोग्राम का मकसद यही है. एंटरप्रेन्योर्स जॉब क्रिएटर्स है, ओके. सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग जॉब, you are giving employment opportunities to people, you are creating something new, yes, so you are contributing to the country, okay. तो ये है entrepreneurship को मोटिवेट करने के लिए, entrepreneurs को ट्रेन करने का यही मकसद है कि yes, they are going to bring growth in the country, okay. so entrepreneurial growth country में हो, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि कंट्री का प्रोग्रेस हो. ठीक है. जो भी नेशनल रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, कुछ भी वेस्ट ना हो जाए. ठीक है. बैकवर्ड रीजन और बैकवर्ड क्लास, ओके, जो सोशली लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और जो जगह डेवलप नहीं हो पाया है, तो ऐसे दोनों को डेवलप करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता है, ताकि पूरे देश में सब जगह में प्रोग्रेस हो. ऐसा ना हो कि सिर्फ सिटीज़ में प्रोग्रेस हो रहा है और बाकी पीछे रह जाए, ओके. सो जो लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं उनका भी प्रोग्रेस होना चाहिए, और जो जगह को अभी तक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला है उन्हें भी मिल पाए. ठीक है. सो दिस इज द objective. Employment opportunities, I've already told you, they are job creators. So entrepreneurs are capable of creating job opportunities. And the last one is widening the base for small and medium scale industries. तो सिर्फ लार्ज स्केल नहीं, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री के लिए, ओके, फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. Like we have seen last year, around 40% of the GDP contribution comes from small scale sector. Okay, तो ये EDP ये देखता है कि स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को भी इक्वली बढ़ावा या प्रोत्साहन मिले, ताकि वो भी प्रॉस्पर करे, वो भी कंट्रीब्यूट करे नेशन बिल्डिंग के लिए. Okay, so this is about EDP. Next we move to two on this ventures of the government, that is Startup India and Stand Up India. Okay, in short we have seen everything in detail in class, so I will be very brief. Startup India, again this is a concept where the 3 criteria which are required so that you can prove that it is a startup. पहला है कि जो भी स्टार्टअप है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए, ओके. दूसरा है स्टार्ट होके 10 साल के अंदर ही होना चाहिए. ठीक है. और द थर्ड इज एनुअल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ के नीचे, लेस देन 100 करोड़ होने चाहिए, ओके. अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होता है, यस, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टार्टअप, ओके. They've given lots of examples. Basically, what is the idea behind all this? You should know what are the 3 criteria, and then you should know that the objectives of this startup is to encourage new budding entrepreneurs, जो नए हैं, yes, छोटे बिजनेस है, ओके, उनको बढ़ावा मिलना चाहिए. ठीक है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज या ऐसे एंटरप्राइज जो है वो जॉब क्रिएटर्स होते हैं, इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कुछ बेनिफिट्स दे. जैसे यहाँ दिया है सिंप्लीफिकेशन एंड
हैंड होल्डिंग, ठीक है। तो जो स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसीजर्स है उसको थोड़ा लिबरल करे, आसान करे, ठीक है। तो ताकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स है वो जल्दी से बिजनेस स्टार्ट करे, और अगर वाइंड अप करना चाहे तो वो भी जल्दी से हो पाए, ठीक है। फिर उनको फाइनेंस बेनिफिट देना, लोन देना, ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन करना, ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा बचे, so that they can plow back those profit into the business again, ठीक है। So the third one that is given here is about incubation. तो जब स्टार्ट में उसको जो हिचेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे उससे उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सो दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज इनिशियल पीरियड। तो जो बिजनेस के लिए भी स्टार्टिंग रहता है, एंटरप्रेन्योर के लिए भी वो नया नया रहता है, तो दोनों को प्रोटेक्ट करना ये स्टार्टअप का मकसद है। ओके, देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स गिवन हियर, सो यू कैन सी दैट उनको जो क्रेडिट पीरियड है वो ज़्यादा दे, ओके, बैंक्रप्सी, इम्प्रूव बैंक्रप्सी कोड, तो उनको ज़्यादा टाइम दे पेनल्टी के बिना उनको पेमेंट करने के लिए, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स दे, फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर एसेट कुछ उन्होंने बेचा है तो उसके लिए टैक्स एग्जेम्प्ट करे। तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा इनोवेशन के बारे में थोड़ा एक्सपोजर मिले। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी इज बेसिकली फॉर एनकरेजिंग entrepreneurship, encouraging people to take up or become entrepreneurs. Okay, तो ये स्टार्टअप है। एंड देन वी सॉ द सेकेंड, दैट इज अ स्टैंड अप, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए है? इट इज फॉर scheduled caste, at least one person should be scheduled caste or scheduled tribe, okay, the borrower, okay, or a woman borrower, ठीक है। तो हर बैंक का हर ब्रांच एटलीस्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट में उन्होंने ऐसे लोन देना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द क्राइटेरिया? द क्राइटेरिया इज गिवन हियर। बोरोवर को शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब या वुमन होना चाहिए, एज 18 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लोन किसको मिलेगा? जो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? जो पहली बार कोई भी वेंचर या एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहा है, तो ऐसे ही लोगों को मिलेगा, ठीक है। और अगर वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं है या इंडिविजुअल वेंचर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग या कंट्रोल ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमन इनके पास होना चाहिए। अगर ग्रुप है तो अगर मोर देन 1% है तो 51%, ओके, 51% का स्टेक या कंट्रोल बिजनेस का किसके पास होना चाहिए? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमन के पास, तब जाके ये सैंक्शन होने वाला है। Okay, so you will see in stand up they are trying to provide easy loans, low rate of interest loans, ठीक है। they also have credit systems like 10 crores, 10 lakh के नीचे है तो it is an overdraft facility, and if it is more than 10 lakhs it is a cash credit system, okay। तो यहाँ what kind of credit it is depends upon the amount, and the total loan that we saw, maximum loan कितना हो सकता है? it is between rupees 10 lakhs to rupees 1 crore, okay। तो लोन आपको, अगर ये क्राइटेरिया आपने देखा, ये आपका फुलफिल हो रहा है, then you can get a loan between anywhere between rupees 10 lakhs to rupees 1 crore, ठीक है। so this is about stand up India. so this is encouraging the people from the lower socio economic background and for women empowerment, okay, क्योंकि लेडीज को भी ये दिया जाता है।
Okay, so this is about stand up. Then we move to agro-tourism. Okay, it is called agro-tourism or it is called agri-tourism. So अगर आप साथ लिख रहे हो तो it is called agri and two terms है तो agro-tourism. Okay, basically ये क्या है? You can see the definition. Idea of bringing is the idea of bringing urban residents to the rural areas for leisure and travel spending. Okay, so in short what it is, farmers को एक साइड बिजनेस जैसा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो अर्बन एरिया में रहते हैं या सिटी में रहते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट फार्मिंग। ओके, रूरल लाइफ में कैसा लाइफ क्या जीते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है। तो ये एग्रो टूरिज्म के माध्यम से फार्मर्स क्या करते हैं, उनके फार्म में काम करने का एक्सपीरियंस, ओके, कैसे काम होता है, ये एक्सपीरियंस सिटी के लोगों को दिलाते हैं। ओके, सो यहाँ टू वे बेनिफिट होता है। एक है कि सिटी के लोगों को समझता है कि रूरल लाइफ कैसे होता है, फार्म में काम कैसे होता है, ठीक है। एंड फॉर द फार्मर्स ये उनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। जो टूरिज्म से वो कमाते हैं, वो उनका जो भी कमाई है वो अपने फार्म्स में लगा सकते हैं, अपना घर भी चला सकते हैं। Okay, so agro-tourism, as you know, it has been, ये महाराष्ट्र में पहले स्टार्ट हुआ है। Even it is there found in other countries. Okay, like it is given ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस। ओके, यहाँ सब ये एग्रो टूरिज्म फेमस है। ओके, तो यहाँ सिर्फ फार्म एक्सपीरियंस ही नहीं दिलाते, ये बाकी एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते हैं। ओके, जैसे आउटडोर रिक्रिएशन है, फिशिंग, ट्रैकिंग करवाया, ओके, हॉर्स बैक राइडिंग करवाया, एजुकेशन एक्सपीरियंस जैसे कैसे राइस प्लांटेशन होता है, ऑल दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, फिर हार्वेस्ट। ओके, हार्वेस्ट सीजन में वहाँ कैसी फेस्टिवल को मनाया जाता है, ये एक्सपीरियंस सिटी ड्वेलर्स को मालूम नहीं है, तो वो ले सकते हैं। ओके, दे कैन ऑल्सो इंडोर गेम्स रख सकते हैं, जो फार्म प्रोडक्ट्स है उससे कुछ फूड आइटम्स बना के उनको खिलाया जा सकता है। ऑल दिस थिंग्स आर डन। तो बेसिकली ऐसे एग्रो टूरिज्म या एग्री टूरिज्म से अर्बन या सिटी के लोग जो है उनको गांव का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो दे कम टू दैट दोज प्लेसेस, दे स्पेंड एंड दे एंजॉय एंड दे गो बैक एंड give the information to their friends, so they can also come and visit. So this is agro tourism. So agro tourism is good for both the urban public as well as the rural farmers, ठीक है। So they can earn, it is a second source of income for them। Okay, so this is about agro-tourism. Last but not the least, we are going to take up intrapreneurs. So what is the difference between intrapreneurs and entrepreneurs? Entrepreneurs कौन होते हैं? जो रिस्क लेते हैं बिजनेस में, जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड दे हैव गॉट एंड यस, entrepreneurs are the risk takers. Entrepreneurs क्या होते हैं? वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको पावर मिलता है, ओके, इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज़ करने के लिए उनको पावर दिया जाता है, ठीक है। सो लेकिन उनको एक सैलरी मिलता है। सो डिफरेंस ये दोनों में यही है, एंटरप्रेन्योर्स आर एम्प्लॉयज़ हु आर गिवन राइट्स फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एंटरप्रेन्योर्स का आइडियाज़ इमीडिएटली सक्सेस लेके आए कंपनी के लिए, इमीडिएट प्रॉफिट्स को इंक्रीज करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनको छूट दी गई है, उनको एनकरेजमेंट दिया गया है कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, ताकि उनका जो आइडियाज़ है वो कंपनी में यूज़ किया जाए और उसका आपको बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। एंटरप्रेन्योर्स कौन है? वो बिजनेस को अंडरटेक करते हैं, वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और रिस्क बेयर करते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज अ एम्प्लॉय बट हु इज
given opportunity or given rights for creating, for innovating. ठीक है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? एंटरप्रेन्योर्स, इंटरप्रेन्योर्स दोनों ही इनोवेट करते हैं, दोनों ही नया कुछ खोज करके नया कुछ प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे लाइक, ओके, फेसबुक में लाइक का बटन, ओके, ऐसे ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू देम एंड वी हैव आल्सो ऑलरेडी सीन देम इन द लेक्चर्स. ठीक है, तो लाइक का बटन फेसबुक में, एक फेसबुक का एम्प्लॉई ने ही ये क्रिएटिव आइडिया दिया था, ओके, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ. ओके, सो ऐसे स्टोरीज. मिस्टर सुमंत मुलगांवकर, ये ही वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ टाटा मोटर्स. तो टाटा सुमो हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर दिस पर्सन हु हैज़ रिसीव द पद्म भूषण. ओके, तो ऐसा उनका क्रिएटिव आइडियाज कंपनी को आगे लेके गया है. सो दैट इज अबाउट इंटरप्रेनर. इंटरप्रेनर क्या होते हैं? एम्प्लॉयज. ठीक है, लेकिन उनको क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशन करने का छूट दिया है. एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? रिस्क टेकर्स. ओके, they are the person who are starting the business, who take the risk. That is the basic difference between entrepreneurs and entrepreneurs. Okay, so entrepreneurs also they've asked this question in the terms. Okay, ज़्यादा question इसमें नहीं है. Okay, so with that we finished the 6 short topics that we were supposed to do today. Okay, that's all for today. Thank you.